Done, everyone? If done, write it down. Done, Ranjin. Very good. See. The first one, like this is one of the simplest formula. This is a square plus b square plus 2ab, a square plus b square minus 2ab, a plus b into a minus b. Right, a cube plus b cube. You can write a plus b in the bracket a square minus ab plus b square. If this is plus, there will be plus, but there must be a minus sign. If this is minus, so a minus b, a square plus ab plus b square. This is a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. A square plus b square plus c square plus 2ab minus 2ac minus 2bc. A square plus b square plus c square minus 2ab minus 2ac plus 2bc. Note down, please. Done. What if we are going for the formula like a few very important formula a cube plus b cube plus c cube minus 3abc, right? And if you want to write a to the power 4 plus b to the power 4, right? A to the power 4 minus b to the power 4, right? A to the power 4 plus a square plus 1, right? Only 4, right? Be careful. These all 4 are very important. उसके बाद odd power में we have to.
Are you able to see? Is visible? First is, just a minute. First. Second is, third is, fourth is plus 1. This is it, right? A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC, A to the power 4 plus B to the power 4, A to the power 4 minus B to the power 4, A to the power 4 plus A square plus 1, right? Only 4 formulas, but very, very, very useful, especially the first one and the fourth one, right? Take your time, maximum 2 minutes, done. Done. See, the first formula, A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC.
This is one of the best formula and one of the most useful formula that you have to use. Like most of the good questions are coming now, then you have to use this a cube plus b cube plus c cube carefully. Now I'm discussing this one is equals to minus ab minus bc minus c, right? This is the first formula we can write, but you have to understand this also. You can use this formula a square b square c square minus ab minus bc minus ca in one more different way. Kaise? This a plus b plus c will be same, but if I'll multiply 2 with this, so 2a square plus 2b square plus 2c square minus 2ab minus 2bc minus 2ca, and this is 1 by 2. This is a plus b plus c by 2 into a square plus b square. I'm writing this one, right? A square एक इसका लिया, एक b square इसका लिया, minus 2ab plus b square plus c square, एक b square यहाँ से लिया, एक c square minus 2bc plus c square plus a square minus 2ac. Is it okay? तो मैंने 1a square यहाँ से लिया, 1b square यहाँ से लिया, minus 2ab से लिखा. Similarly 1b square 1c square लिखा, minus 2bc लिखा, and b square c square a square लिखा and 2ac लिखा. मतलब ये complete जो लिखा हुआ चीज है उसी को लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया था, 2 से डिवाइड कर दिया, जो 2 यहाँ पर. So I can again rewrite this as a plus b plus c by 2 a minus b का whole square plus b minus c का whole square plus c minus a का whole square. Is it okay? ये पेज भी देख लो एक बार. Note down please. Done everyone? Kalyan done, Aditya, Akshat, Aman, Anmol, Anuj. ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाओ. 10 a plus b plus c by 2 a minus b the whole square plus b minus c the whole square plus c minus a the whole square. राइट नाउ अब यहां पर से एक कहानी आती है जिससे स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूंगा थोड़ा सा और कंसेप्चुअली आपको स्ट्रॉन्ग कर लूं. राइट, मान लो अगर मैं आपको 2 नंबर देता हूं a एंड b और मैं बोलता हूं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 2-3 स्टेटमेंट लिखता. राइट, -2 है. सेकंड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. थर्ड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है. राइट, ये कुछ नंबर मैंने लिख दिए. ये तीनों के बारे में व्हाट यू कैन से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए बी के बारे में क्या मैं कुछ प्रिडिक्ट कर सकता हूं? What you can say a square plus b square is equal to -2. राइट, ये गिवन है जो अभी तक हमने पढ़ा है. a एंड b बिलोंग्स टू, ये रीड किया जाता है बिलोंग्स टू को ना, बिलोंग्स टू. a और b जो है वो रियल नंबर है. तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू -2,
a square plus b square is equal to 0 and a square plus b square is equal to 1. ये तीन चीजें गिवन है. अब इसमें यू हैव टू से क्या पॉसिबिलिटी है फॉर द वैल्यूज ऑफ a एंड b. Anyone? Prince? फर्स्ट वन शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर रियल वैल्यू. अनमोल का ये बोलना है. वेरी गुड बेटा. फर्स्ट वन, अगर रियल वैल्यूज मैं ले रहा हूं तो हमेशा स्क्वायर होने के बाद वैल्यूज पॉजिटिव हो जाते हैं. मतलब साफ है कि अगर दो नंबर पॉजिटिव मेरे पास हैं, दो पॉजिटिव नंबर का सम कभी -2 नहीं हो सकता. तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा फॉर रियल नंबर. यहाँ एक नया नंबर इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट्स कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, राइट. बट हम लोग यहाँ पर इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं. सो फर्स्ट वन को हमने डिस्कार्ड किया फॉर ए बी रियल, राइट. सेकंड के बारे में क्या बोल सकते हैं? Prince is saying second is not possible. Second, Anmol is saying second is not possible. क्या एक्सप्लेन कर सकते हो आप? अनम्यूट कर लो अपने आप को. एक्सप्लेन इट प्लीज. Divyam is saying 0 and 0, right? You can unmute yourself. Yes, Divyam. Yes, sir. What do you want to say about a square plus b square is equal to 0, please? A and b's values are 0, so a square plus b square is also 0. Very good, very good. A and b are not a and b, both the values a square plus b square is always positive number, but positive number as well as 0. So it is possible that the value of a and b both are 0. Then we can say a square plus b square is equal to 0, right? A square plus b square is equal to 0, right? So for second case, 100% we can say that two values are possible. A is equal to b is equal to 0. And for third case, infinite many values. Many values are there for A and B. A and B के बहुत सारे values हो सकते हैं जो एक दूसरे को satisfy कर रहे हो. तो some negative is not satisfying, but two square का sum will be 0 means सबको 0 ही होना चाहिए. So coming back to the question, right? मैंने अगर इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे ही करता हूँ, फर्स्ट पेज पे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc बोल दिया, राइट. मैं एक फर्स्ट ये कंडीशन लेके चल रहा हूँ. इफ a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc मैंने बोल दिया, राइट. अब अगर मैंने a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc बोल दिया तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, राइट, हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उस पर क्या होगा वो देखो कि इससे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, देन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 आएगी. बट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब के इक्वल में जो था मेरे पास वो था ये नंबर, वो था ये नंबर, राइट, या ये नंबर. मतलब ये अगर 0 होगा तो इसे भी 0 होना चाहिए, राइट. इसे भी 0 होना चाहिए का मीनिंग ये रहा कि मैं ये बोल सकता हूं फॉर दिस केस a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसे 0 होना चाहिए. और अगर इसे 0 होना चाहिए तो इसका साफ मतलब होगा कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल्स टू
3ABC अगर given है, then 100% we can say this कि either A plus B plus C is equal to 0, right? Or now this is the first case, A plus B plus C is equal to 0, or A square plus B square plus C square is equal to AB plus BC plus CA, right? या तो A plus B plus C 0 होगा, या A square plus B square plus C square is equal to AB plus BC plus CA होगा, राइट? यही दो केस हो सकते हैं मेरे पास, राइट? A square plus B square plus C square is equal to AB plus BC, एंड इसी को लिखने के लिए सेकेंड वे में मैं क्या बोल सकता था कि that you can write as A plus B plus C by 2 into A minus B का होल स्क्वायर, B minus C का होल स्क्वायर प्लस C minus A का होल स्क्वायर। अगर ये 0 है तो इसका मतलब है इधर A plus B plus C is equal to 0, और A minus B का होल स्क्वायर प्लस B minus C का होल स्क्वायर प्लस C minus A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ध्यान दो, अभी जो फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे थे उससे ये पता चला कि अगर A minus B का होल स्क्वायर, B minus C का होल स्क्वायर और C minus A का होल स्क्वायर 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा कि A minus B 0 होगा, B minus C 0 होगा, C minus A 0 होगा। इसका मतलब होगा A is equal to B is equal to C आएगा। मीन्स शुरुआत हुई थी हमारी बात कहां से कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के इक्वल होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के इक्वल होगा, तो वी कैन राइट, जो फॉर्मूला था वो लिख सकता हूँ, इक्वेट किया 0 से, एंड वहां से मेरे पास या तो ये आंसर आ सकता है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 होनी चाहिए, या आंसर आ सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होना चाहिए, या उसी को फिर दूसरे तरीके से हमने लिखा एंड वी गेट टू नो कि हमारे पास या तो पॉसिबल होगा ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। इज इट ओके एवरीवन? डन। ओके, ये दो फंडामेंटली हमारे पास फॉर्मूला आ गए, ये दो चीजें हमारे पास होने पर क्या मैं लिख सकता हूँ, राइट? फर्स्ट, अभी यहां तक ही मैं रहता हूं एंड कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, a square plus b square plus c square is equal to 250, find value of ab plus bc plus c। ये भी दे देता हूं, राइट? bc plus ca is equal to 3, right? Find value of a cube
Find value of A plus B plus C. Right? First question. A plus B plus C is equals to 9. AB plus BC plus CA is equals to 40. Find A square plus B square plus C square. Right? एक और x plus y is equal to 12, xy is equals to 27. Find x cube plus y cube, right? Maximum 4 minutes.
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखते हैं। Start with the first one. We know the formula for first one. A plus B plus C the whole square is equal to A square plus B square plus C square minus 2 AB plus BC plus C. Right, given values है मेरे पास, क्या क्या values given है? A square plus B square plus C square 250 and this is 3. So A square plus B square plus C square सब प्लस में मेरे को गिवन है, तो दिस विल बी प्लस ओनली, राइट? दिस इज 250 प्लस 2 इंटू 3 गिवन था, आई गेस ना? टू इंटू 3 256, right? So A plus B plus C whole square is equal to 256. किसका स्क्वायर होता है ये? 16. Right? So you are getting the value ना? प्लस माइनस 16 बोलना अच्छा रहेगा क्योंकि A plus B plus C whole square है ना? दो वैल्यूज आपके पास पॉसिबल होंगे प्लस एंड माइनस के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, A plus B plus C 9 and this is to 9 square this minus 40 into 2 is A square plus B square plus C square. 81 minus 80 is 1. This value will be 1. Direct formula में, right? थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन फॉर्मूला कि आप हमेशा कर सकते हो, जैसे इसी केस में देखो x प्लस वाई गिवन है मेरे पास, राइट? x प्लस वाई गिवन है मेरे पास एंड एज वेल एज जो दूसरी क्वांटिटी मेरे पास गिवन है x इंटू वाई। अब दोनों वैल्यूज से मुझे x क्यूब वाई क्यूब निकालना इज ऑलवेज सिंपल। यस 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 अलियान, वेरी गुड बेटा। See, so we can write x cube plus y cube is equal to x plus y into x square plus y square minus xy, or we can rewrite this as x plus y into x plus y the whole square minus 3xy, right? X plus y is 12 into this 12 square 144 minus 3 into 27, right? 81, हाँ, राइट? ये क्वांटिटी अपने आप में चली गई। 81 144 माइनस 81 इंटू 12, राइट? ये गया 3 6 इंटू 12, ओके? Something, right? 756, okay? So एक ये वेरिएशन जो होते हैं, you know the सिंपल से क्वेश्चन में, हाँ, डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर, वहां पर से आसानी से दिखाई दे सकते हैं आंसर्स, राइट? बट इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे वेरिएशन लेते हैं, राइट? जिसमें कुछ वेरिएशन मैंने आपको दिखाए, राइट? अब इन्हीं वेरिएशन में एक और वेरिएशन अपने आप में याद होगा, आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन कुछ किए हों, राइट? फर्स्ट x plus 1 by x is equal to 7, find 1x cube plus 1 by x cube. Second,
A plus B is equal to 10. Find A square plus find A cube plus B cube. मैंने A square plus B square ले लिया, थोड़ा हिडन रखा, राइट? बड़ी चीज नहीं है, फिर भी x to the power 4 plus 1 by x to the power 4 is equal to 47. Find x cube plus 1 by x cube, right? And fourth, A plus B plus C is equal to 6. AB plus BC plus CA is equal to 11. Very good, Anuj. Find A cube plus B cube plus C cube minus 3ABC. All four. Very good, Husal. Prince, very good. Maximum 3 minutes. Very good, Anuj. You have to use direct formula.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज हाँ सर अभी हेलो आई। आई ना? ये समझ आया, ये एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मैंने कैसे ब्रेक किया। ठीक है ना? यस सर। राइट, फर्स्ट वन। सेकंड वन, यहाँ पर जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था, a प्लस बी की वैल्यू गिवन है 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 58, a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। राइट, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए पहले तो मुझे a इंटू बी चाहिए होगा। राइट, अब a इंटू बी निकालने के लिए यू नो दैट अगर मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया अपॉन 2 करूंगा तो वो ए बी के इक्वल होगा। 100 माइनस 58, राइट, 42 by 2 is 21। राइट, ये ए बी की वैल्यू आ गई। ये क्लियर है सभी को? ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए फॉर्मूला वी नो दैट राइट, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। राइट, ए प्लस बी का मतलब है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 58 माइनस ए बी का मतलब है 21। राइट, 37 into 10। वेरी गुड फ्रेंड्स। राइट, थोड़े से वेरिएशन को केवल आपको समझना है ना, कोई इतनी बड़ी बात होती नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब होते हैं, बट वो वेरिएशन को यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू डील विद द वेरिएशन। इज इट ओके एवरीवन? थर्ड पर आ जाऊं। थर्ड पर अगर ध्यान दो तो मैंने दोनों तरफ +2 कर दिया। +2 करने पर दिस इज कमिंग एज x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर दैट इज 7। फिर मैंने दोनों तरफ फिर से +2 कर दिया तो x + 1, मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, x तब नेगेटिव दूंगा तो दूसरा और भी आएंगे। राइट, 3, क्योंकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा तो x + 1/x की वैल्यू 3 आ गई। राइट, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, x + 1/x, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, ये 3 था। राइट, 6 x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को मैं चाहता तो लिख सकता था x + 1/x का होल स्क्वायर। राइट, 9 - 3 6 18। वेरी गुड खुशी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। सर ये वाला फिर से कराओ ना, ये ऊपर का पार्ट खाली, x + कौन सा, 1/x कहाँ पर = 3 खाली, वो कैसे आया? x + x = 3 कैसे आया? हाँ। ये बेसिक हमने वो फॉर्मूला यूज किया बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का। दिखाता हूँ अभी, यहीं पर दिखाता हूँ। सी, मेरे पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू, या शुरुआत से ही कर देता हूँ, x⁴ प्लस 1/x⁴ की जो वैल्यू थी वो 47 थी। मैं दोनों तरफ +2 कर सकता हूँ। ये क्लियर है? नहीं समझा सर। दोनों तरफ +2 लिख सकता हूँ। हाँ तो समझना क्या है, +2 लिख दिया। हाँ बट वही। क्यों लिखा? राइट, इसलिए लिखा क्योंकि मैं x⁴ जो लिखा हुआ है उसे x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दूं, 1/x⁴ को 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखूं इनटू x स्क्वायर। ये किसी फॉर्मूला को रिजेंबल कर रहा है क्या? a² + b² + 2ab, ये है। यस सर,
समझ गया ये समझ क्या गया। होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 7 आ गई। यस सर समझ गया। वेरी गुड। फिर से +2 किया तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। तो मैंने कहा x को पॉजिटिव लेते हुए काम कर रहा हूँ, तो x प्लस 1/x की वैल्यू 3 आ गई और फिर उसे यूज कर डाला। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट थर्ड आई गेस सबसे सिंपल में एक था। ना फोर्थ, वेरी गुड। फोर्थ, हाँ सॉरी थर्ड नहीं, फोर्थ सबसे सिंपल में था। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है। कैसे? हमारे पास ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए यूज करना है, दो फॉर्मूले को अलग अलग करके। तो मैंने पहले ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा, तो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, सबको एक ब्रैकेट में रख दिया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 है, तो ये आ गया 36 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, दिस इज 11। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू 47 आ गई। राइट, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। राइट, a प्लस बी की वैल्यू, हाँ सर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर प्लस सी था बेटा। स्क्वायर ठीक है ठीक है प्लस 2। ठीक। हाँ सर। ये 22 हो गया, तो आंसर 22 14 है। 22 हो गया ना, 14 14 है सर, आज 14। ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला में ही लगा दिया था। राइट, ये 14 आ गया। अब मुझे यहाँ पर यूज करना है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या थी 6, ये लिख दिया, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या था 14 माइनस ए बी बी सी सी ए क्या था 11, आई गेस यही था ना 11। तो ये कितना आ गया 18। इज इट ओके? ठीक है यस सर। नाउ, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज जो होते हैं उनको यूज को हो गए कि किस तरह से यूज होते हैं, लेकिन इन फॉर्मूलाज में इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इसको बेस्ट इसका यूज क्या हो और कैसे हो। तो इस पे अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्ट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इज इक्वल टू 1, फाइंड possible values of a plus b। right, right, third one,
Do it. ध्यान से करना ना. So very good questions. अमन, अनमोल, थोड़ा सा और ध्यान से देख लो. Could be change. Very good.
Done, everyone? Very good. कुशल, प्रिंस, very good. सेकंड में दिक्कत जा रही है, कोशिश करो दोनों तरफ क्यूब करने का, और मैं सॉल्व करता हूं। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। जो गिवन है मेरे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, राइट, इसे रीराइट करता हूं। कैसे? ए क्यूब राइट एंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस -1 का क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc मीन्स दो चीजें होती है। फर्स्ट हमने देखा था a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, और सेकेंड a is equal to b is equal to c, right? Means from first I'm getting a plus b is equal to 1, from second I'm getting a plus b is equal to -2. Okay everyone, कितने लोगों का सही था? Write down yes. Prince, very good. Alian, very good. Not bad, Aman. Anuj, very good. Achyut, very good. Okay, the second one. Then the second one is a very good question, and इस तरह के क्वेश्चन कई बार आपको आएंगे ना, अभी 11th में भी कई बार आपको देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। दोनों तरफ हमने क्यूब कर दिया, याद रखना इसकी वैल्यू x है ना, क्यों अभी पता चलेगा। If this is a and this is b, a to the power 1/3 का क्यूब इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b, दोनों मल्टीप्लाई होंगे, तो ध्यान दो क्या आएगा 4 - 5 इंटू a प्लस b जो था वो x था। बस यहीं पर मैं लिख के वेट कर रहा हूं, सभी लोग यस बोलोगे तब आगे बढ़ूंगा। सबको समझ में आया? नहीं आया तो फिर से बताओ। Okay, Aman, Prince, okay. Everyone getting this? √5 - 2 क्यों बेटा? जो गिवन है वही रहेगा ना। कुशल, अनम्यूट करो अपने आप को बेटा। कुशल, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर। क्या पूछना चाह रहे हो बोलो। सर वो √5 - 2 होगा ना? क्यों? क्वेश्चन तो गिवन है 2 - √5।
क्यों ऐसा बोल रहे हो? डिस्कस करो ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। सर आपने वो पिछले लेक्चर में आप बता रहे थे ना वैसा, हाँ हाँ, क्या बता रहा था मैं? जिसका वैल्यू, जैसे √5 का वैल्यू ज्यादा है 2 से, तो वो तो अंडर रूट रहेगा, वो तो अंडर रूट रहेगा, उसे निकालना होता है ना बेटा। यहाँ तो पूरा क्यूब रूट है। वो अंडर रूट रहेगा, तब अंडर रूट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जो इवन पावर होता है ना 1/2 2n का पावर, नेगेटिव जैसा है वो वैसे ही रहेगा। और वैसे भी तुमने तो पावर दिया इसे ना, क्यूब। ओके। अगर ऑड रहता तब उसमें जाता। हाँ हाँ हाँ, समझा। ठीक है। हाँ, फिर से एक बार फिर भी मैं ये करूं। एक्चुअल क्वेश्चन जो गिवन था मेरे पास, x इज इक्वल टू a प्लस रूट बी का पावर 1/3 प्लस a माइनस रूट बी का पावर 1/3, ये क्वेश्चन गिवन था। मैं दोनों तरफ क्यूब किया। ये मान लेता हूं अल्फा टू द पावर 1/3, ये बीटा टू द पावर 1/3, इसका क्यूब है। ये क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा टू द पावर 1/3 अल्फा टू द पावर 1/3 बीटा टू द पावर 1/3 लिख सकता हूं। अल्फा का मतलब था a प्लस रूट बी, राइट। बीटा का मतलब है a माइनस रूट बी, तो ये तो कैंसिल होके 2a हो गया। तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2a प्लस 3, ये हो गया a स्क्वायर माइनस b का पावर 1/3, और ये तो मेरा x है, तो ये x लिख दिया। निश्चल, Yes, sir. इज इट ओके? समझ आया? Yes, sir. Understood, sir. वेरी गुड बेटा। सो नाउ व्हाट यू आर गेटिंग कि x क्यूब इज इक्वल्स टू 4 minus 3x, or we can write x cube plus 3 is equal to 4. Yeah, minus 4 is equal to 0. Or x cube minus 1 plus 4x minus 1 is equal to 0. X minus 1 common out. Right? वैसे यही मेरे को प्रूफ ही करना था। आगे मतलब वैसे अगर मैं चाहूँ तो x minus 1 common out, तो x square plus x plus 4 will be 0. So this is no real roots, just having real roots. Okay. Right? Third one. कितने लोगों का हो गया थर्ड? Write down yes if you've done. अलियान, क्या आंसर आया बेटा? उदय, क्या आंसर आया? -8। और कोई? 26। अमन 2, प्रिंस 2, 146। See, we can rewrite this as x minus 2 is equals to 2 to the power 1/3, 2 to the power 2/3। फिर वही काम करता हूँ, दोनों तरफ क्यूब। x minus 2 the whole cube is equal to 2 to the power 1/3 plus 2 to the power 2/3 का होल क्यूब। रिलैक्स वे में ओपन कर दो फॉर्मूला। a क्यूब minus 3, अभी देखता हूँ दुष्यंत, 3a square into b plus 3ab square minus 8 is equal to, इसे भी एक्सपेंड करा, a क्यूब, राइट, 2 to the power 1/3 का क्यूब, b क्यूब plus 3ab into a plus b. This is 6x, right? ये गया x क्यूब minus 6x square plus 6x, ये कैंसिल होगा तो 6x, right? 6x minus 2 ना, 12 and ये 14 is equal to 2। ये आंसर आ रहा है 2।
कैलकुलेशन चेक करो सभी लोग। ओके, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं। सी, ये इस थ्योरी में मतलब बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं उन्हीं पर हम लोगों ने वर्क किया, एंड वो वर्किंग हमारी थोड़ी सी इस तरह की होनी चाहिए कि यू विल बी एबल टू क्रैक द क्वेश्चन। हाँ, कि आराम से ये क्वेश्चंस को आप देख सको एंड सॉल्व कर सको, राइट। क्यूब के क्वेश्चन है या जो भी इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, नेक्स्ट, एंड द फोर्थ वन। केवल 4 क्वेश्चन दे रहा हूं, बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश किया हूं लेवल को, बट इतना भी नहीं है कि क्वेश्चन नहीं हो, राइट। ट्राई दिस, these 4 questions, maximum 7 minutes। Very good, Khushi. Very good. Good fast.
Done. Very good. Okay, okay. Do it fast. No problem. Done. Good, 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 good. Okay, last 1 minute. Last 1 minute, right? Do it fast. Do it fast.
Let's start. I guess. See the first one, right? कई different ways होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना. First question, a is equal to x to the power 3, x to the power minus 1 by 3. दोनों रेसिप्रोकल, राइट? दोनों रेसिप्रोकल है, मैंने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, राइट? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस b, कैसा आएगा? Means x cube plus 3x is equal to a minus 1 by a. It was उल्टा दिया हुआ था, मतलब x की जगह a था, मतलब आपके पास आया होगा a cube plus 3a is equal to x minus 1 by a. कितने लोग का सही आया? Write down yes. Uday, very good. Rimjim, very good. Achut, very good. Divyam, very good. Dusant, very good. Very good, very good. मतलब now you understand, right? Nischal, very good बेटा. Right. ये छोटा सा एक ये है, right? Second में ये same question given है in different form, right? फिर मैंने वही यूज किया, राइट? ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्मूले में दोनों तरफ क्यूब रखा हमने, एंड आई एम गेटिंग y क्यूब इज इक्वल टू 3 प्लस 1 by 3 इंटू a इंटू b इंटू y. डायरेक्ट आंसर आ रहा है अगर ध्यान दो तब 10 by 3. Is it okay? Nope. Nope. Third one, ये थोड़ा पहले फोर्थ कर लेते हैं, तो थर्ड के लिए जगह बचेगा आसानी से. राइट? दोनों तरफ क्यूब किया, r प्लस 1 by r a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट? दोनों तरफ अगर मैं क्यूब कर दूं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, राइट, जो गिवन है, इज इक्वल टू 3 क्यूब 27 माइनस 9 18. r प्लस 1 by r की वैल्यू आ गई 18. फिर से दोनों तरफ क्यूब कर दिया, राइट? r क्यूब प्लस 1 by r क्यूब प्लस 3r प्लस 1 by r, राइट? 18 इज इक्वल टू 18 का क्यूब, या फिर r क्यूब प्लस 1 by r क्यूब इज इक्वल टू 18 क्यूब माइनस 3 इंटू 18 कॉमन ले लिया, 18 स्क्वायर माइनस 3, 324 माइनस 3, 321 इंटू 18. बट इन सब में सबसे प्यारा क्वेश्चन जो था, ये क्लियर है ना? कितने लोगों का सही है ये फोर्थ? वेरी गुड जोई. ओके, वेरी गुड. सो इस वेरिएशन को थोड़ा सा आगे मैं बढ़ाऊं, ये गिवन है x इज इक्वल टू 7 प्लस 4 रूट 13 अपॉन 7 माइनस 4 रूट 13.
मुझे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 14 द होल स्क्वायर चाहिए। ओके, एनीवन आंसर बताओगे? किसी का? जल्दी से। ध्यान दो, ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। वन आंसर है। नहीं बेटा, ध्यान दो, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7 माइनस फोर रूट 13 जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव होने का मतलब अंडर रूट में क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है, रियल नंबर नहीं है आपके पास। दिस इज नॉट द रियल नंबर, ये आयोटा है, इमेजिनरी नंबर है, उसके लिए क्वेश्चन है, राइट? तो आपको यहाँ पर बोलना चाहिए था सर रियल नंबर नहीं है, इसके एक्स की रियल वैल्यूज के लिए हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। जब इमेजिनरी करेंगे तो इमेजिनरी में देखेंगे। इज इट ओके? मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूँ आप लोगों के लिए, इसे पॉजिटिव करते हुए। तो ध्यान रखना, जो पढ़ा हुआ है उस पर आपको कंफर्म होना है कि मैं ये पढ़ा हुआ हूँ और ये जानता हूँ, उसमें नो गड़बड़, राइट? अब चेंज किया, अब देखो, एंड इसमें स्टिल आपको वही रखता हूँ, निकालने वही है, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 14 द होल स्क्वायर। डू इट फास्ट। ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा समझाने के लिए। सर इसका भी वन। वन नहीं बेटा, लास्ट वाला वन नहीं था, लास्ट वाला नो रियल वैल्यूज होने था। हाँ? मैंने वो 13 नहीं देखा, मैंने उसको भी 3 करके ही लिखा था गलती से। अभी देखो, राइट है सर? अभी देखता हूँ, जस्ट वेट, सबको ट्राई कर लेने दो। डन, शुरू करूं?
डन। देखो, हाँ किसका हो गया था? सी। मेरे को चाहिए एक्स एंड ये फंक्शन जो हमारे पास है, तो गिवन जो है हमारे पास यहाँ पर फंक्शन x इक्वल टू, अगर मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो व्हाट आई एम गेटिंग, राइट, इसे ध्यान से देखना। 7 प्लस से मल्टीप्लाई किया तो 7 प्लस 4√3, ये आ गया, नीचे आ गया 1, ये आ जाएगा। ध्यान दो, 7 स्क्वायर इज 49 माइनस 48, तो 1 ही रहेगा, राइट। सो अंडर रूट ऊपर का हट गया, तो इसे फिर लिख दिया मैंने x माइनस 7 इज इक्वल टू 4√3। दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर देता हूँ, ये आ गया x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 इज इक्वल्स टू ये 16 इंटू 3 48, मतलब x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू 48 माइनस 49 इज -1। ध्यान दो, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, राइट। Then again this will be x minus 14 squaring both sides. -1 square is 1. Very good. किसका आया था 1? Very good बेटा, बिल्कुल सही, very good. Got the right answer. Very good, बहुत अच्छे ना। Next one. फिर से एक बार ये देखो, इसमें मैंने फर्स्ट स्टेप पे क्या किया कि ये जो क्वेश्चन गिवन था ना, इसी के अंडर रूट के अंदर मैंने, राइट, अंडर मैंने 7 प्लस 4√3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर में होल स्क्वायर हो गया का अंडर रूट, तो केवल ये बच गया और नीचे 1 आ गया, ठीक। फिर मैंने 7 को लेफ्ट में ट्रांसफर कर दिया, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 4√3 स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो यू आर गेटिंग दिस थिंग, सही है। 49 को राइट ट्रांसफर किया, दिस इज गेटिंग -1, तो x स्क्वायर माइनस 14x इज इक्वल टू -1 स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यू आर गेटिंग दिस नंबर, ओके। ओके एवरीवन, ओके सी। तो ये वेरिएशंस को थोड़े से ध्यान में रखने हैं, इतनी बड़ी बात तो नहीं होती, फिर भी यू हैव टू बी केयरफुल, राइट। नेक्स्ट, इसकी वैल्यू चाहिए, लास्ट क्लास में ये बताया था, याद होगा, उसी पर बेसिक क्वेश्चन, ये होल टू द पावर 1/3 है ना। फाइंड इसकी वैल्यू निकालनी, 3 क्वेश्चंस।
Very good. Aman, very good. Kalyan, very good. Nischal, very good. Prince, very good. Husi, very good. Start. See, first one, right? X plus y plus z is 1. X, Y, Z is given and right. तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होगा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, राइट, निकाल देता हूं. तो उसके लिए we know that the formula x plus y plus z the whole square is equals to x square plus y square plus z square plus 2xy plus yz plus zx. That's minus 1. Right? And ये मेरे पास x plus y plus z की वैल्यू भी 1 गिवन है. This is to x square plus y square plus z square की वैल्यू 3 आ गई. Right? अब x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब मेरे पास x प्लस y प्लस z आ गया 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. कुछ ऐसा, राइट? लिखता हूं इधर. हाँ, the simple given form of formula, we know that, right? X cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to x plus y plus z. ये तो एक हो ही जाएगा. x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स. ये होना चाहिए. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. राइट, अभी निकाल रहा हूं बेटा. एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है.
ये दोनों की वैल्यूज को लिखते जाता हूं। दिस इज 1 एंड ये आ गया था क्या 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कुछ आ गई 1। कितने लोग का सही है? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट द राइट आंसर? राइट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। राइट, तो 2 स्टेप में आपको क्वेश्चंस को करने थे यहाँ पर। राइट, सेकंड थोड़ा आसान क्वेश्चन है। राइट, क्या आसान है इसमें? ये देखो कि थोड़ा सा क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc का फॉर्मूला लगता है। राइट, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर ध्यान से लिखो, अगर ये a है, ये b है, ये c है, ये a प्लस बी प्लस सी 0 है, so this will be 3 times x square minus y square minus z square minus x square upon 3 times x minus y minus z minus x। 3 कैंसिल होगा, ये तीनों भी इससे कैंसिल होंगे, x प्लस y प्लस z प्लस x। ये आया आपका आंसर। कितने लोग का सही है? सेकंड है। वेरी गुड अमन, वेरी गुड। रिमझिम, वेरी गुड। दिव्यम, वेरी गुड। क्या बटसर स्क्वायर? क्या नहीं बेटा, स्क्वायर से नहीं कैंसिल किया, इसको 2 पार्ट में हमने लिखा। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है ना, तो इसे हमने लिखा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये एक्स माइनस वाई वाले को कैंसिल किया स्क्वायर को नहीं कैंसिल किया। पहले फॉर्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वो लगाने के बाद कैंसिल किया। ओके, डन। राइट, x बाई 1 इसे लिखा। एंड दोनों तरफ याद करो, लास्ट क्लास में भी हमने किया था, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया। तो x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू, दोनों को प्लस किया, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 टू द पावर 1/3, दोनों तरफ पावर 3 दे दिया, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। फिर से इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाया। जो आपको चाहिए वो आपके सामने। राइट, a प्लस बी का होल क्यूब प्लस a माइनस बी का होल क्यूब, ये आएगा x क्यूब प्लस 3x माइनस किया तो 3x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू m। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो चाहिए वो इक्वल टू 0। आई बात समझ में? ओके, तो हमने बेसिक फॉर्मूला, सर्ट्स, राइट एंड नंबर्स ये कर लिया। नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। राइट, पॉलिनोमियल्स का बेसिक पढ़ेंगे ना, उसके बाद साइन स्केल वगैरह, इनइक्वालिटी साइन पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द पॉलिनोमियल्स। इसके सीट्स आप लोग को दिए हुए हैं, सर्ट्स 1 एंड 2 जो हैं वही आपको अभी कंप्लीट करने हैं। ठीक है, सर्ट्स 1 एंड 2 वाले पूरे क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, चलो, थैंक यू, थैंक्स लॉट, स्टे सेफ। हाँ बेटा बोलो।
Sir, in third question, we have to find x